वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे ज्योमेट्री सेशन। आपका मैं स्वागत करता हूं आज के ज्योमेट्री सेशन में। और पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या देखा था। सो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन अबाउट द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स इन द प्रीवियस सेशन एंड द प्रैक्टिस सेट 3.2. वी हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड द ईच प्रॉब्लम ऑफ द प्रैक्टिस सेट 3.2 इन द प्रीवियस सेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज arc of a circle. So we are going to discuss about the arc of circle, central angle, what is the central angle. उसके बाद हम देखेंगे what is the measure of arc, congruent arcs, property of the sum of arcs and the theorems of congruent arcs corresponding to congruent chords and the congruent chords corresponding to the congruent arcs. तो ये सब जो points है वो आज हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं। तो चलिए अभी start करते हैं with the arc of a circle के बारे में। So here in this figure you can observe here line K is a secant of the circle with center C, which divides circle with center C in the two distinct points A and B. So hence here we can see that AXB is one arc and AYB is the second arc made by the secant K of the circle with center C. But how can we define the arc of a circle? So the definition of the arc of circle is that the secant of the circle divides the circumference of the circle in two parts, then each of these parts together the common points of the circumference and the secant of the circle form an arc. तो आपको अच्छी तरह से फिर से एक बार स्लोली समझा देता हूं कि सर्कल की जो सेकेंड होती है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। सर्कल को डिवाइड करती है, इसका मतलब आपको एक बात याद रखनी है, इट डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन टू पार्ट्स. Okay, so secant divides circumference in the two parts, then each of these part with the common point of the circumference as well as secant form an arc. तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि K ये secant circumference of the circle with center C को दो parts में डिवाइड करती है, that is AXB और AYB दो parts में, लेकिन arc AXB is the arc together the common points of the circumference and the secant. तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो point A and point B are the two points which are common points in the circumference of the circle as well as they are the points of the secant K. तो ये रही definition of the arc of a circle. मैं आपको फिर से एक बात समझा देता हूं। जब हम सर्कल का जिक्र करते हैं तब हम सोचते हैं ओनली सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन जब सर्कुलर रीजन का हम विचार करते हैं तब इसका मतलब ये होता है दिस इज ऑल इंटीरियर पार्ट टुगेदर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन. तो सर्कुलर रीजन और सर्कल में डिफरेंस है, जैसे कि बैंगल को आप सर्कल कह सकते हो और जो चपाती हम रोज खाते हैं उसे हम सर्कुलर रीजन कह सकते हैं. ये बेटर एग्जांपल होगा आपके लिए. तो चलिए मैंने आपको समझा दिया है कि आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है. आर्क इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का ही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कॉमन पॉइंट के साथ आता है. कौन से कॉमन पॉइंट? secant के common points with the circumference of the circle. तो A and B are the common points of the secant K as well as the circumference of the circle with center C. So hence AXB is first arc, AYB is second arc. Okay, then now what is the role of point A and B? Point A and B are called end points of the arcs. तो यहाँ पे point A और point B को end points of arc कहते हैं, जैसे कि A and B are the end points of arc AXB as well as A and B are the end points of arc AYB. तो यहाँ पे arc of circle में हम नोटिस कर सकते हैं arc AXB and next arc AYB. Whereas हम ये कह सकते हैं points A and B are end points of both arcs. तो यहाँ पे जो पॉइंट A और पॉइंट B है वो दोनों पॉइंट जो है वो आर्क AXB और आर्क AYB दोनों आर्क के एंड पॉइंट्स कहे जाते हैं. ठीक है, चलिए अब देखते हैं which are the types of arcs. तो यहाँ पे हम लिखेंगे types of arcs. So which are the types of arcs? There are the three types of arcs, that is minor arc, major arc and semicircular arc. तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज फर्स्ट वन? द माइनर आर्क. अब माइनर आर्क को डिस्कस करते हैं. सो माइनर आर्क क्या होती है? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं. व्हेन द सेकेंड not passing through the center of the circle, then
the arc which is not on the side of the center is called minor arc. जब secant सर्कल के सेंटर से पास नहीं होती, इसका मतलब वो अदर देन सर्कल पास होती है, then the arc which is on the side where the center of circle C is not present, that arc is called minor arc. इसका मतलब जिस तरफ सेकेंड के जिस तरफ सर्कल का सेंटर नहीं होता उस तरफ की आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं. तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि आर्क AX B की तरफ लाइन K के नीचे सेंटर नहीं है, लाइन K के ऊपर सेंटर है, जो कि आर्क AY B की साइड में है. तो ऐसे साइड जहां पे सेंटर प्रेजेंट नहीं है उस साइड के आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं. सो माइनर आर्क कौन सी है? आर्क AXB. तो आपकी आर्क AXB है वो माइनर आर्क है. अब सेकंड देखते हैं व्हाट इज द मेजर आर्क. मेजर आर्क तो ऑब्वियस है कि जैसे हमने अभी डिफाइन किया है व्हाट इज माइनर आर्क को कैसे डिफाइन किया है, व्हेन द secant not passing through the center of the circle, then the arc which is not on the side of the center is called minor arc. तो इसके अपोजिट हम मेजर आर्क को कह सकते हैं, that is the arc which is on the side of the center, it is called major arc. तो यहाँ पे arc AYB है जो सेंटर के साइड को है, इसका मतलब AYB is a major arc. So यहाँ पे arc AYB arc AYB is major arc, arc AXB is minor arc. अब देखते हैं थर्ड, that is number third, semi circular arc. Semi circular arc. So what is the semi circular arc? So यहाँ पे हम अब ये और कंस्ट्रक्शन करेंगे. For example, line P passes through the center C. Line P passes through the center C and intersect the circle in point C and D and F. So line P passing through the center C and intersect the circle in point D and F. Now the two arcs so formed are called semicircular arc, and which are they? That is arc DXF is first semicircular arc and arc DYF is the second semicircular arc. तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं arc DXF and arc DYF. So these two are the semicircular arc. लेकिन आपको यहाँ पे याद होगा arc DXF is congruent to arc DYF. It means the two semicircular arc are always congruent to each other. लेकिन माइनर आर्क और मेजर आर्क में डिफरेंस होगा. मेजर का मतलब बड़ी आर्क, माइनर का मतलब छोटी आर्क. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्क्स: semicircular arc, major arc and minor arc. Now we are going to discuss about the central angle. चलिए अब देखते हैं सेंट्रल एंगल क्या है. What is the central angle? So what is central angle? For example, we have the circle with center O here, circle with center O, and this is angle AOB. So यहाँ पे central angle, and what is the central angle? तो definition पहले बता दूं. If the vertex of an angle is the center of the circle, then it is called central angle. इसका मतलब ये होता है कि जब एंगल का जो वर्टेक्स होता है, आपको पता है वेयर द टू रेज आर मीट, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. जहां पे दो रेज का ओरिजिन होता है या फिर दो रेज एक दूसरे से मिलते हैं, उसे हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं. सो इट मींस O इज द ओरिजिन ऑफ टू रेज OA एंड OB. इट मींस O इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB. सो बट अब यहां पे दो बातें हैं. वर्टेक्स O is also center of the circle and O is also vertex of angle AOB. It means now angle AOB is called central angle. So यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं vertex of angle AOB is
center O, therefore angle AOB is central angle. Angle AOB is central angle. तो इसको हम central angle कहेंगे. समझ में आया? तो angle AOB is called central angle. अब इससे आगे चलते हैं. What is the measure of arc? चलिए आगे बढ़ते हैं. Measure of arc. लेकिन आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट x लूं और यहाँ पे एक पॉइंट y लूं, then again we get the two different arcs, that is arc AXB and arc AYB. लेकिन आपको यहाँ पे ये सवाल आया होगा where is the secant? तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन AB, that is the secant. इसका मतलब A और B से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, that will be the secant of the circle with center O, which divides the circumference in two parts, AXB and AYB. So whereas AXB is a minor arc, जैसे हमने पहले देखा था, and AYB is a major arc. Okay, now we are going to discuss about the measure of arc. What is the measure of arc? What is the measure of arc? For example, the measure of this central angle will be theta degree. अब यहाँ पे कंसीडर किया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल AOB का हमने कंसीडर किया है थीटा डिग्री. Then what will be the measure of minor arc AXB as well as major arc AYB? इनके मेजर हम देखते हैं. तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, the measure of minor arc is equal to the corresponding central angle. Measure of minor arc is equal to the measure of corresponding central angle. तो इसका मतलब ये हुआ कि arc AXB का जो मेजर होगा, that is the measure of angle AOB. So hence the measure of arc AXB it is equal to theta degree also. तो यहाँ पे लिखते हैं, that is measure of arc AXB is equal to measure of angle AOB. So hence it is theta degree. तो ये तो हुआ अब माइनर आर्क का मेजरमेंट. लेकिन हाउ कैन वी फाइंड आउट द मेजर ऑफ मेजर आर्क AYB? अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि AYB का मेजरमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? Then you know that what is the degree measure of circle? That is exactly 360 degree. तो डिग्री मेजर ऑफ सर्कल हमें पता है 360 डिग्री होता है. इसका मतलब अगर हमको पूरे सर्कल का मेजरमेंट पता है और मेजर ऑफ आर्क AXB का पता है, तो हम मेजर ऑफ आर्क AYB फाइंड कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे नाउ measure of arc AYB is equal to 360 degree minus measure of arc AXB. तो यहां पे आप लिख सकते हैं measure of arc AYB is equal to 360 degree minus measure of arc AXB. लेकिन AXB का मेजरमेंट हमने यहां फाइंड किया है थीटा डिग्री. So that's why 360 degree minus theta degree is the measure of major arc AYB. So this is called measures of arcs. So minor arc का मेजरमेंट हमेशा आपको याद रखना है, measure of minor arc equal to the corresponding central angle and measure of major arc is difference of the degree measure of circle to the measure of minor arc. माइनर आर्क का मेजरमेंट आप डिग्री मेजर ऑफ सर्कल से माइनस करोगे तो आपको मेजर आर्क का मेजरमेंट मिलेगा. तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स. तो आर्क की कॉन्ग्रुएंस हम यहाँ पे देखेंगे. कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स. ओके, अगेन now we have again circle with center O, and suppose this is angle AOB and let the next angle COD. So we have in this figure the two angles. Angle AOB is also central angle. Angle COD is also second central angle. But here is AXB is the arc, which is one arc, and CYD is the second arc. So now we are going to find
which arcs are said to be congruent. तो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं यहाँ पे मैं बता दूं. फॉर एग्जांपल द मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल COD. इट मींस if the measure of angle AOB equal to theta degree, then the measure of angle COD is also equal to theta degree. Then what can we say that AXB about arc AXB and arc CYD. So hence we know that is the measure of minor arc equal to the corresponding central angle. ये प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस कर ली है. तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे the measure of arc AXB, that is measure of arc AXB, यहां पे नीचे लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क AXB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AYB इज इक्वल टू थीटा डिग्री. यहां पे हम एक बात नोटिस कर सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क AXB इक्वल टू थीटा डिग्री एज वेल एज मेजर ऑफ आर्क CYD is also equal to theta degree. Why? Because angle AOB and angle COD are the two central angle have equal measures. And we know that the measures of arc are equal to the corresponding central angles. तो इसका मतलब इनके जो corresponding angles है वो equal हो गए. हम इसको segment number 1 कंसीडर करें. Okay, now next segment AO equal to segment BO equal to segment CO equal to segment DO. All are radii of same circle. And therefore we can say arc AXB is congruent to arc CYD. And how can we now conclude the definition of congruent arcs? यहाँ पे पॉइंट लिखो, congruence of arcs. तो आर्क्स की कॉन्ग्रुएंस हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कंसीडर करें तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1 and 2. From 1 and 2. Why? From 1 and 2, the arc AXB is congruent to arc CYD. And how can we give now the definition of congruent arcs? When we can say that the two arcs are congruent to each other. अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम दो आर्क को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्यों कह रहे हैं. तो आपको इसका जो जवाब है इन दो स्टेटमेंट में मिलेगा. यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो द मेजर ऑफ टू आर्क्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ द रेडियी व्हिच आर कंटेनिंग देयर एंड पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ. सो हेंस द टू आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब ये होता है टू आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ their measures are equal and radii of same length. आपको इस समझ में आता होगा कि दो आर्क तभी कॉन्ग्रुएंट कही जा सकती है जब उनका मेजरमेंट सेम हो और उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो रेडिई है उनकी लेंथ भी सेम हो. इसका मतलब ऑल रेडिई आर इक्वल, देन द बोथ आर्क्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. तो यहां पे इसका रीजन है therefore AXB and CYD are the congruent arcs of a circle. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें है वो डिस्कस करना है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ sum of measures of arcs. तो आर्क्स के मेजर की सम की प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स. तो दो आर्क्स के मेजर की सम कैसे की जाती है वो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फॉर एग्जांपल अगेन वी हैव द सर्कल. सपोज वी हैव एनी सर्कल विद सेंटर सपोज O and let some points, that is point A, B, C, D and E. Suppose in the circle with center O, that is point A, B, C, D are concyclic point. एक ही सर्कल पे जो पॉइंट्स होते हैं इसका मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स नोट किए जाते हैं उनको हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं. ये बात आपको याद रखनी है.
कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या है, इसका कंसेप्ट आपको कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम जब आएगा तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सो हियर पॉइंट ए बी सी डी ई आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ टू आर्क्स डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू आर्क्स क्या है? तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूं तो आपकी प्रॉपर्टी ये है, द टू और द, आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, द सम ऑफ एनी टू आर्क्स इज इक्वल टू द थर्ड आर्क इफ द टू आर्क्स हैविंग ओनली वन और ओनली 2 पॉइंट्स इन कॉमन। इसको थोड़ा अलग ढंग से बता दो, इफ टू आर्क्स हैविंग ओनली 1 पॉइंट और ओनली 2 पॉइंट्स नॉट मोर देन 2। इसका ओनली 1 या तो एक ही पॉइंट हो या तो सिर्फ 2 पॉइंट हो, नॉट मोर देन 2। इफ टू आर्क्स only 1 point in common or only 2 points in common, no more than 2 points in common, then sum of measures of those two arcs is equal to the newly formed arc। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है, इसकी पीडीएफ में आपको डालने वाला हूं, इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि दो आर्क की एडिशन तभी हो सकती है जब उनमें एक ही पॉइंट कॉमन हो या तो 2 ही पॉइंट कॉमन हो, नॉट मोर देन 2 पॉइंट्स। अगर 2 से ज्यादा पॉइंट कॉमन है तो उनकी एडिशन नहीं हो सकती। वो कैसे, इस फिगर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टू आर्क्स इन द फिगर, आर्क ए बी सी एंड आर्क सी डी ई। तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हैं पॉइंट सी इज यूनिक पॉइंट, पॉइंट सी इज यूनिक पॉइंट कॉमन इन आर्क ABC and arc CDE, and therefore we can say that therefore measure of arc ABC plus measure of arc CDE equals to measure of arc ACE। ये क्यों? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर दो आर्क में एक ही पॉइंट कॉमन है तो उन दोनों आर्क की मेजर की जो सम होगी वो थर्ड आर्क के मेजर की इक्वल होगी। तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हो ए बी सी, ये एक ही पॉइंट, सी डी ई, इन दो आर्क्स में कॉमन है। पॉइंट सी इज द कॉमन बिटवीन ए बी सी एज वेल एज सी डी ई। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट इज द measure or the sum of the measures of these two arcs can be equal to the third larger arc। अब इन दोनों की एडिशन करने से इतना एरिया कवर हो जाता है सर्कमफ्रेंस का, इतना सर्कमफ्रेंस कवर हो जाता है। इसका मतलब तीसरी जो आर्क होगी वो ACE के नाम से या फिर ADE के नाम से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ABE के नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो आर्क में एक ही पॉइंट कॉमन होगा तब उनकी सम तीसरे आर्क के बराबर होगी। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं इस डेफिनेशन का, और वो दूसरा पहलू क्या था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक ही पॉइंट कॉमन हो या फिर 2 ही पॉइंट कॉमन हो तभी उनकी सम पॉसिबल है। तो वो कैसे, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल में। ये पहला रहा, तो सेकंड में यहां पे डिस्कस करते हैं। नाउ पॉइंट्स ए एंड पॉइंट डी और मे बी points A and point E are 2 points common, 2 points common in arc AC and arc E। अब चलिए नोटिस करते हैं, आर्क ACE यहां तक आर्क है और आर्क ए इतने ही आर्क है। ए कौन सी आर्क है, ये इतनी, और एसी ये पूरी। अब हम नोटिस कर सकते हैं कि इन दो आर्क में 2 ही पॉइंट कॉमन है, एक यहां पे ए है और दूसरा यहां पे ई है, क्योंकि दोनों के ये एंड पॉइंट्स हैं। तो अब इन दोनों की सम कितनी होगी, तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्वियस है कि ये दोनों आर्क मिलके पूरा सर्कल कवर करती है। इसका मतलब सम ऑफ दीज टू आर्क्स इक्वल टू द सर्कल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं therefore we can write measure of arc ACE plus measure of arc AE
इज इक्वल टू 360 तो इन दोनों का जो सम है या फिर इन दोनों के मेजर की जो सम है वो पूरे सर्कल के मेजर के इक्वल आएंगे क्योंकि ये पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं। इसका मतलब अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू आर्क्स, दो आर्क के मेजर की सम तभी हो सकती है जब उनमें या तो एक पॉइंट कॉमन हो या से ज्यादा दो पॉइंट कॉमन हो, तभी उनकी हम मेजर की सम की कर सकते हैं जो इक्वल टू द थर्ड लार्जर आर्क की इक्वल आएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा होगा, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए, लेकिन व्हाट हैपन इफ द मोर देन 2 पॉइंट्स आर इन कॉमन, उसका एक एग्जांपल दें। अब आप यहां पे नोटिस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आर एबीसी एंड आर बीसीडी, कंसिडर आर्क एबीसी एंड आर्क बीसीडी। अब हमने दो आर्क कंसिडर किए हैं, ये एबीसी है और आर्क बीसीडी दोनों भी आर्क है, लेकिन नाउ बट आर्क बीसी इज कॉमन बिटवीन आर्क एबीसी एंड आर्क बीसीडी। अब यहां पे आप नोटिस कर सकते हो कि आर्क एबीसी यहां तक है और आर्क बीसीडी यहां तक है, लेकिन इतना जो सरकमफ्रेंस है, इतनी जो आर्क है वो पूरी आर्क कॉमन है किसमें, इन दोनों आर्क में। सो इट मींस नाउ आर्क बीसी इज कॉमन बिटवीन द टू आर्क्स एबीसी एंड बीसीडी। लेकिन अब इस आर्क बीसी में कितने पॉइंट्स कंटेन होंगे ये आप जानते हैं, देयर आर द इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स प्रेजेंट इन द आर्क बीसी, इट मींस दे ऑब्वियसली मोर देन 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो से ज्यादा पॉइंट दो आर्क में कॉमन आते हैं तो उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके मेजर के एडिशन आप नहीं कर सकते हो, वो आएगी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बीसी जो है वो कॉमन आर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बेटर समझ में आया होगा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स, दैट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स इक्वल टू द थर्ड लार्जर आर्क if they have only one or only 2 points in common। ठीक है, तो आज का सेशन है जो हम यहां पे स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क के बाद हमारे जो थ्योरम्स आने वाले हैं, जो थ्योरम मैंने आपको बताया था, थ्योरम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क्स टू द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स एंड थ्योरम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ये दोनों थ्योरम हम अगले सेशन में देख लेते हैं। तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉप रुकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हो। इनके पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।